Fine. So we were doing the cases of consistency. We have been given two linear equations in the form a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. ठीक है. So we have three possible cases. पहला intersecting lines या इसी को हम कहते थे unique solution. Why it was called as unique solution? Because intersecting lines will be intersecting only at one point. ठीक है. They cannot intersect at more than one point. और दुनिया में जो चीज एक हो उसे यूनिक कहा जाता है. That's why it is called as unique solution. What was the condition? A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2. Parallel lines, they are never intersecting. So if they are never intersecting, that means there will not be any intersection point. And if there is no intersection point, then there will not be any solution. ठीक है. Condition is A1 upon A2 is equals to B1 upon B2, but not equals to C1 upon C2. X के कोफिशिएंट्स और Y के कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होगा, लेकिन कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो इससे डिफरेंट आएंगे. और अगर लाइंस कोइंसिडेंट हैं, एक के ऊपर एक हैं, तो तीनों ही रेशियोज इक्वल होंगे. ठीक है. So what kind of questions do we have in the syllabus? Questions हैं, examine what kind of lines are being represented by the following equations. जैसे for example, अगर हमें कहा गया है 2x plus 3y is equals to 12 and 5x minus 3y is equals to 7. Let us say we have been given these two kind of equations. ठीक है. A1 क्या है? 2. एक गलती जो यहां अक्सर बच्चों से होती है वो ये A1 में x को मिला लेते हैं. रिमेंबर A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2, इनमें वेरिएबल्स नहीं आएंगे, ये कोफिशिएंट्स हैं. A किसके कोफिशिएंट्स हैं? x के. B किसके कोफिशिएंट्स हैं? y के. और C क्या है? बिना x या y की टर्म्स, यानी कि कांस्टेंट टर्म्स. सो अगर मैं यहां कहूं A1 अपॉन A2 क्या है, देन इट इज 2 अपॉन 5. गलती क्या होती है? यहां स्टूडेंट्स लिखते हैं 2x अपॉन 5x. x को इसमें इंक्लूड नहीं करना है. B1 अपॉन B2 क्या है? 3 अपॉन माइनस 3. फाइन. क्लियरली यू कैन सी दैट A1 अपॉन A2 is not equals to B1 upon B2. So what kind of lines are being represented? कैसी लाइन्स हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं. ठीक है. फाइन. सो सिंपल इक्वेशंस देकर हमसे क्या पूछ लिया जाएगा? दैट एक्सप्लेन व्हाट काइंड ऑफ लाइन्स आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. पहले इसको नोट करो. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the system of equations three x plus y is equals to 1, 2k minus 1x plus k minus 1y is equals to 2k plus 1. Find the value of k for which the pair of equations represents no solution. Represents no solution. Find the value of k for which this pair of equations represents no solution. ठीक है. Now the question says that they are representing what kind of equations? No solutions. So the condition for no solution is A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 but not equals to C1 upon C2. No solution कौन सा था? Parallel lines. Am I right? और parallel lines की condition क्या थी? A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 but not equals to C1 upon C2. जनरली ऐसे क्वेश्चंस में हम केवल फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व करते हैं. एक्सेप्शनल केसेस आएंगे, जब आएंगे तब समझाऊंगा कि कहां हमें इसको भी देखना है, बट जनरली हमें कौन से देखने हैं? केवल फर्स्ट और सेकेंड. सो A1 अपॉन A2 क्या लिखूं? टू के माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1.
क्रॉस मल्टीप्लाई 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। यहां फिर एक गलती होती है अक्सर बच्चों से, 3k माइनस 1 लिख दिया जाता है। इट इज नॉट 3k माइनस 1, 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। इधर लाते हैं 3k माइनस 2k माइनस 1 प्लस 3, k is equals to 2. So what is the value of k for which they are representing? No solution, that is k is equals to 2. Note कीजिए। Find the value of k for which the pair of equations kx plus 3y is equals to k minus 2, 12x plus ky is equals to k. Find the value of k for which the equations kx plus 3y is equals to k minus 2 and 12x plus ky is equals to k represents no solution. Again, what kind of situation is given? No solution. ठीक है? So if we go with no solution, again a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2. एक बात ध्यान रखना, c1 और c2, देखो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या थी? ax plus by plus c is equals to 0. ठीक है? तो बस c के केस में ये ध्यान रखना, या तो दोनों ही इक्वेशन में c इस तरफ हो या फिर दोनों ही इक्वेशंस में c उस तरफ होकर इक्वल्स टू 0। ठीक है, फाइन। अगर दोनों में c इस तरफ है तब भी आप c1 अपॉन c2 डायरेक्ट लगा सकते हो बिना साइन चेंज किए हुए, और अगर दोनों में c1 और c2 उस तरफ है इज इक्वल टू 0 है तब भी आप लगा सकते हो बिना साइन चेंज किए हुए। लेकिन ऐसा मत करना कि एक में तो उधर है और एक में इधर है और आपने बिना छेड़खानी किए हुए ऐसे कैसे लगा दिया। मतलब दोनों इक्वेशंस में यूनिफॉर्मिटी होनी जरूरी है। गॉट इट? या तो दोनों में c इस तरफ हो या फिर दोनों में c उस तरफ। ऐसा नहीं एक में इधर एक में उधर हमने लगा दिया सीधे, नो दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, सो लेट अस पुट द वैल्यूज। a1 अपॉन a2 क्या लिखना चाहिए? k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k। जैसे मैंने कहा था हम इसको सॉल्व करते हैं। सो वी आर गेटिंग k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, सो k इज कमिंग एज प्लस माइनस 6। जैसे ही k के दो आंसर आए यू हैव टू बी अ बिट मोर केयरफुल। अब हो सकता है इनमें से एक आंसर लॉजिकल हो और एक आंसर रिजेक्ट करना पड़े। कैसे चेक करेंगे? सेकेंड पार्ट को लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, b1 अपॉन b2 दैट इज 3 अपॉन k इज नॉट इक्वल्स टू k माइनस 2 अपॉन k। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3k इज नॉट इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 2k। इज इट? ठीक है, इसको उठा के इधर लाएं, सो k स्क्वायर माइनस 5k इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो k माइनस 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी या तो k की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए या k शुड नॉट बी इक्वल्स टू 5। अभी तक मैंने इन दोनों को चेक किया। ठीक है, इसको और इसको भी अनइक्वल करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सो k अपॉन 12 शुड नॉट बी इक्वल्स टू k माइनस 2 अपॉन k। k स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 12k माइनस 24। शिफ्ट करते हैं उधर, k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 24 इज नॉट इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बन सकते हैं क्या इसके? नहीं बन सकते। ठीक है, फिर कोई इश्यू नहीं है, इनमें से कोई भी आंसर ऐसा नहीं है जो इसको रोक रहा हो, तो हमारे पास दोनों ही आंसर वैलिड है। कई बार क्या होता है, यहां से एक आंसर आ जाता है k इज नॉट इक्वल्स टू 6। यहां क्या आंसर आया था? k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, और यहां से क्या आंसर आ गया? k इज नॉट इक्वल्स टू 6। अगर ऐसा आ गया मान लो, तो फिर देखो यहां तो बोल रहा है प्लस माइनस 6 हो सकता है और यहां से क्या आ गया? 6 नहीं हो सकता। तो उस केस में हमारे पास एक ही आंसर बचता है, व्हाट इज दैट? माइनस 6। नहीं समझे बात को? दोबारा समझो, यहां से आंसर क्या आया? प्लस माइनस 6, और जब हमने नॉट इक्वल टू वाला पार्ट सॉल्व किया
तो इसमें आ गया k इज नॉट इक्वल्स टू 6। एक जगह से आंसर कह रहा है k की वैल्यू 6 और -6 दोनों हो सकती है, और एक जगह कहा जा रहा है k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। एम आई क्लियर? सो यहां से तो आया था 6 और -6 दोनों है, लेकिन बाद में क्या पता पड़ा 6 नहीं हो सकता। तो कौन सी वैल्यू करेक्ट आंसर है? केवल और केवल एक -6। अगर ऐसा आया तो, फिलहाल ऐसा कुछ आया नहीं, तो हमारे पास दोनों ही आंसर्स इसके वैलिड है। फाइन। सो के की वैल्यू क्या है? आइदर +6 और -6। नोट करो, ये दोनों इक्वेशंस हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। और हमें क्या चाहिए? के की वैल्यू चाहिए। तो एक बात तो हमेशा याद रखना, यूनिक सॉल्यूशन के केस में कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। क्योंकि ये नॉट इक्वल्स टू के फॉर्म में होती है, तो हमारा आंसर भी किस फॉर्म में आएगा? नॉट इक्वल्स टू के फॉर्म में। यहां अक्सर बच्चों से गलती क्या होती है, इसको इज इक्वल टू में लिख देते हैं, क्योंकि हमारी आदत, हम इतना ट्यून हो चुके हैं दैट व्हाट डू वी राइट? इज इक्वल्स टू। फाइन। तो यहां पर ये कैसा रहेगा? नॉट इक्वल्स टू। क्या लिखोगे? k/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2/, तो सीधा सीधा आंसर आ गया k इज नॉट इक्वल्स टू -4/3। ठीक है। सो यूनिक सॉल्यूशन के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स हमेशा किस फॉर्म में होंगे? नॉट इक्वल्स टू। कुछ नहीं किया मैंने, 2 को यहां मल्टीप्लाई किया है, सो k इज नॉट इक्वल्स टू -4/3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and n for which the following pair of equations, find the values of m and n for which the following pair of equations represent infinite solutions. Find the values of m and n for which the following pair of equations represent infinite solutions. ठीक है। किस तरह की कंडीशन दी है हमें? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की। क्या होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन? a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। a1 क्या है? 3। a2 क्या है? m+n। b1 क्या है? 4। b2 क्या है? 2m-2n। चाहे तो एक साथ लिख लो, मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया है। ठीक है। c1/c2 क्या है? 12/5m-1। ठीक है। वी हैव 3 कंडीशंस, आप इनमें से कोई सी भी दो पहले ले लीजिए। मैंने कौन सी दो ले ली? फर्स्ट एंड सेकेंड। लेट अस गो विथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 6m - 6n 4m + 4n। इसको यहां ले आता हूं, 6m में से 4m गया तो 6n वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो 10n, यानी बेसिकली m की वैल्यू क्या आ गई? 5n। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इनफैक्ट ये m - 5n = 0 है। इनफैक्ट ये क्या है? m - 5n = 0 एक लीनियर इक्वेशन बन गई। x और y की जगह पर किसमें बन गई? m और n में। ठीक है। इसके बाद आपकी चॉइस है, आप फर्स्ट और लास्ट को ले सकते हो, या आप सेकंड और थर्ड को ले सकते हो। दैट इज एब्सोल्युटली अप टू यू, आपकी चॉइस के ऊपर है, कोई जबरदस्ती इसमें नहीं है। सो मैं सेकंड और थर्ड को ले रहा हूं। सेकंड और थर्ड को लूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 20m - 4 24m - 24n। इसको यहां लाऊंगा, माइनस का 4m माइनस का 4 प्लस का 24n इज इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन देखो 4 से डिवाइड हो सकती है आराम से, तो पहले 4 से डिवाइड करके कुछ सिंपल कर लेते हैं इसको। m को हटाकर क्या लिखा जा सकता है? सो माइनस का 5n माइनस का 1 प्लस का 6n इज इक्वल्स टू 0। 6n में से 5n गया तो n, 1 को उठा के यहां ले आए,
पुट n in first, so m is equals to 5n, यानी कि 5 into 1. सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने के लिए m की वैल्यू क्या आ रही है 5 और n की वैल्यू क्या आ रही है 1. सो देखो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते करते पहली इक्वेशन ये बनी, दूसरी इक्वेशन यहां बन गई. सो बेसिकली हमने जो सेकंड मेथड था ना सब्स्टिट्यूशन वाला, m की वैल्यू n के फॉर्मेट में यहां रिप्लेस की तो आंसर आ गया. कई बार ऐसा भी होगा कि यहां पर भी एक इक्वेशन बन जाएगी और यहां पर भी एक इक्वेशन बन जाएगी. सो दो इक्वेशन बन गई, बस वो x और y में ना होकर किसमें होंगी, m और n में. और आपको क्या मेथड लगाना पड़ेगा, एलिमिनेशन. ठीक है. सो लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन में फर्दर क्या आ जाएंगी, लीनियर इक्वेशंस. लेकिन कौन से केस में आएगी, केवल इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाले केस में. ना तो यूनिक में आ सकती है, ना ही नो सॉल्यूशन में आ सकती है, केवल किस में आएगी, इनफाइनाइट वाले केस.